صبر کا چٹان ہے بیٹی، ایسے عظیم صبر کا چٹان ہے بیٹی۔ اور آج بابا باپ باہر سے آیا، بیٹی نے پوچھا ابا کہاں گئے تھے؟ باپ کی زبان سے سچائی نکل گئی، بیٹی میں تیرا دولہا تلاش کرنے گیا تھا۔ بیٹی رو پڑی، باپ دن بھر آپ نے کھایا نہیں؟ ہاں بیٹی تیرے لیے ایک اچھا خوبصورت سے تیرے لیے ایک دولہا تلاش کرنے گیا۔ جیسا ہی نے باپ نے سوال کیا، بیٹی تڑپ گئی، دل میں آگ لگی، رونے لگی۔ کہا بابا یہ قوم، یہ دنیا، یہ زمانے کے لوگ ان بیٹیوں کو چھوٹی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں۔ بیٹی نے اپنے باپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے دوپٹہ سے باپ کی آنکھوں سے آنسواں پوچھنے لگی۔ یہ بیٹی ہے، یہ رب کا بڑا انعام ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فرمایا ان کی قدر کرو، یہ تمہارے گھر کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے صبر کا ایک پیغام ہمیں ملتا ہے خاتون جنت سے، اور محبت کا اعلان ملتا ہے کہ قول نبی ہے، رحمت رحمان ہے بیٹی، اور ماں باپ کی نجات کا سامان ہے بیٹی۔ بولے ایک بار سبحان اللہ۔ دوسرے لگتا دعاؤں کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ بابا کہاں سے لائیں گے میرے لیے جہیز۔ بیٹی یہ کہہ کے رونے لگتی ہے باپ سے۔ باپ نے کہا بیٹا تسلی رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ شیر آپ دیکھیں گے کہ بابا کہاں سے لائیں گے میرے لیے جہیز، ارے بابا کہاں سے لائیں گے میرے لیے جہیز، دن رات سوچ کر یہ پریشان ہے بیٹی، ہر دن رات سوچ سوچ کے پریشان ہے بیٹی، ماں باپ کی نجات کا سامان ہے بیٹی، اور قول نبی ہے، رحمت و رحمان ہے بیٹی۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد الباقر وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بڑے محبت سے چار مصرے میں آپ کے حوالے کروں، اور پھر اگر وقت ہو تو تقریر کی جائے، وقت نہیں ہے تو سلام پڑھا جائے گا۔ ٹینشن نہیں لیجیے اور سکون سے رہیے۔ کبھی کبھار ایسے مواقع ہاتھ آتے ہیں، خدا کی عجیب نعمت ہے، خدا کی عجیب قدرت ہے۔ کہیں دولہا پیدا ہوا، کہیں دلہن بنایا ہے۔ خدا نے اپنی حکمت سے عجیب نقشہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے لڑکی لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں چلا، کچھ دن کے بعد معلوم ہوا محلے میں سیٹ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ماں باپ دنیا والے پریشان ہیں، مگر پتہ نہیں چل رہا جوڑا کہاں لکھا، تھک کے چور ہو گیا۔ اسی لیے میرے دوستو آپ دیکھیں گے یہ لڑکیاں رحمت ہیں اور اللہ کی نعمت ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں خدا نے اپنی حکمت کا عجیب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا ہوا دولہا، کہیں دلہن بنایا ہے، اور خدا نے اپنی حکمت کا عجیب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا ہوا دولہا، کہیں دلہن بنایا ہے۔ جواب سنیں، یہ دونوں عرش اعظم سے مقرر ہو کے آئے ہیں، یہ دونوں عرش اعظم سے مقرر ہو کے آئے ہیں۔ خدا نے اپنی حکمت سے یہ دونوں کو ملایا۔ دلی سے آ گیا کوئی آدمی محلے میں، بھائی ہم کو نکاح کرنی ہے،
अरे कैसे निकाह करनी है? घर देखा नहीं, दर देखा नहीं, मकान देखा नहीं, जगह नहीं देखा, दुनिया नहीं देखा, मगर अल्लाह ने उसका जोड़ा उसके साथ लिखा। 2-4 दिन गुजरते हैं, मोहल्ले में गश्त करता है, बात बनते बनते बन जाती है। लोगों ने पूछा क्या किया जाए, कहा बेटी है दे दिया जाए। अरे क्या दुनिया, ये जोड़ा है, ये रब का इनाम है, अल्लाह का ये फैसला है। कश्मीर से आया निकाह हो गई, दिल्ली से आया निकाह हो गई, बम्बे से आया निकाह हो गई। ये अपने दिल पे अल्लाह ने एक सबक दे दिया। ये इतनी बड़ी सब्र का चट्टान है बेटी। और मेरे दोस्तों, यही बेटियां जब जाती हैं, जब तक घर में रहती हैं, इसलिए फरमाया ये लोगों जब दरवाजे पे आया करो तो पहले बेटी के नाम से आवाज दिया करो। ये तुम्हारे लिए बेटियां हैं और इन्हें तुम आवारा ना समझो, बल्कि ये परवरिश के लायक है। इन्हें बड़े खूबसूरत से पालो, बड़े अच्छे अंदाज में इनकी तालीम और तरबियत का ख्याल दो। इनको सबसे पहले कुरान की तालीम दे। क्या मैं बोले, पूरा मजमा बोले, सबसे पहले कुरान की तालीम दे। इस्लाम में जब आपके बच्चे छोटे हों, आज लोग अंग्रेजी और हिंदी पे पूरी तवज्जो देते हैं। 2000 का एक सब्जेक्ट पे एक मास्टर को दे देंगे और कोई मौलवी अगर 200 रुपया मांगेगा, ये मौलविया 200 रुपया मांग रहा। अरे क्या दिमाग है यार, अब उसको एक सब्जेक्ट पे 1500 रुपया दे रहे। लेकिन आपने कुरान में पढ़ा है, पता है वहां जाने के बाद से जब पेशाब करने जाता है तो वो नहीं बोलता बैठ के करो या बोलो खड़े होकर, लेकिन ये मौलवी पहले बोलता है कह रहे पाक साहब को कराना। छोटी बच्ची है, घर से चलने लगी, माँ ने कहा, इमाम साहब ने कहा बेटी घर से चलना तो हिजाब लगाकर निकलना। मतलब उसकी बुनियाद हिजाब में है, पर्दे में है, गहवारा मिल गया। इमाम साहब ने जैसे ही कुरान की कुछ आयतें सुनाया, कहा बेटे जब कल से आना तो पेशाब करना तो पानी ले लेना। मिजाज में डाल दिया, ये इस्लाम है, ये कुरान है। और आज लोग बच्चों में जाते हैं और पहले मेहनत करते हैं कॉलेजों पे, यूनिवर्सिटियों पे। मेरा मतलब इंग्लिश के खिलाफ नहीं, उर्दू हिंदी के खिलाफ नहीं, मगर जो तुम्हारा बेस है, जो तुम्हारी जिंदगी का अहम मकाम है दुनिया में, जितना बड़ा भी अगर अफसर बन जाए और कुरान में पढ़ा तो अधूरा। अगर जिंदगी का माहौल, जीने का तरीका, सलीका, अदब, तहजीब, बोल बात का तौर तरीका अगर मिला है तो इस्लाम और कुरान को मिला। ये जान लेना, अगर आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है और वो सिविल सर्जन नहीं बल्कि और भी आगे चला जाए, मगर उसका परवरिश अगर इस्लामी तहजीब से बचपने में खूबसूरत हुआ है तो आप जाएंगे तो बड़े सलीके से बात करेगा, बहुत तहजीब से बात करेगा। और अगर बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से है तो आपकी अहमियत नहीं, मिजाज ही नहीं मिला, उसका गहवारा न मिला। इसलिए मेरे दोस्तों मुसलमानों, ये तवज्जो दें कि आप अपनी मेरी तकरीर का पहला हिस्सा होता है बच्चों की तालीम। इसलिए ये लड़कियां जब कुरान पढ़ेगी इन्हें पता होगा एक शौहर का मकाम क्या है। जब ये इस्लाम पढ़ेगी इन्हें पता है एक ससुर का अहमियत क्या है, एक सास किसे कहते हैं, एक मर्द का मकाम क्या है, खातून ने जन्नत में क्या दर्ज दिया है। ये तालीम इनके घराने से मिले। आज यही वजह है रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है। और अगर वहाँ इस्लाम है, कुरान है, तहजीब है, नबी का पैगाम है तो बिगड़ा हुआ माहौल भी बन जाया करता है। समझदारी आती है, सोच अच्छी होती है, फिक्र अच्छी होती है, तमीज और तहजीब अच्छी होती है जहाँ दीनदारी है। इसलिए याद कर लेना, वो घर हमेशा खूबसूरत का माहौल है, वो घर हमेशा बड़े अच्छे माहौल में शुमार किया जाता है। वो घराना बड़ा अच्छा माना जाता है जिस घर में दीनी माहौल हो। याद कर लेना, शिवानी सिर्फ तकरीर ही नहीं करता है बल्कि दिल की आवाज रखता हूं। इसलिए शायद अगर आपने एक भी ले लिया तो कल आपका घर जन्नत बन जाएगा। इसीलिए समझो, आप आज आपका बेटा अगर आपके सामने नजरें मिलाकर बात करता है तो ये आपकी कमी है, ये उस बच्चे की कमी नहीं। आज ही जवान हो गया था,
बोलो, उसको जवान होने में एक वक्त लगा, कलीब एक बार बड़ा हो गया। बेटी मां से मुंह लगाती है, वो बेटी अचानक बालिग हो गई, 12 साल का वक्त गुजरा होगा, काफी वक्त उससे गुजरे होंगे, उसकी सोने से लेकर और खाने पीने तक तमाम नजरें तुम्हारे निगाहों से गुजरी। अगर आपने ये तहजीब दिया तो वो बेटी नजरें झुकाकर बात करेगी, आपकी आवाज सुनकर दरवाजे से हट जाएगी। यह आपकी तालीम का असर है मेरे दोस्त। तो इसलिए आपकी बेटियां और आपके बेटे अगर हो तो तहजीब और तमद्दुन पे तवज्जो देना। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम और कुरान आपको हमेशा इंसानियत और तालीम की बात करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर इनको जब जाने लगे तो इनको कुरान और सुन्नी बहिश्ते ज़ेवर उसको उर्दू देकर देना। उर्दू तो पढ़ाने की आदत नहीं है ना। मैं एक जगह गया, कहा था बेटी की शादी है, हमने कहा बुलाइए बच्ची को, आई सलाम की। मैंने कहा बेटा ये उर्दू 2 लाइन पढ़ दे। कहा जरा उर्दू नहीं जानती हूँ। कितनी पढ़ी हो? कहा कि मत पूछिए, जो पूछिए डिग्रियां सारी है। मैं पूछना चाहता हूँ वो जाकर अपने शौहर को क्या इज्जत करेगी, कल बोलेगा तलाक होना चाहिए। ये तालीम है, आपने इतनी तालीम दी, कुरान नहीं सिखाया, उर्दू की तालीम नहीं दी, आपने कुछ नहीं दिया, पूरी लाइफ आपने चौकट से दिया। क्योंकि आप औरों की तरह से नहीं, औरों की तरह से आपका जिंदगी नहीं, औरों की तरह से आपका मजहब नहीं, और जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी को गुजारता है। हमारा एक बैंड है, हमारा एक तरीका है, हमारा एक वसूल है, हमारा एक ज़ाब्ता है, हमारा एक डिसिप्लिन है। हम एक वसूल के तहत जीते हैं, एक तरीके से हमारा चलता है। हमारे इस्लाम में हमें गोर से लेकर माँ की गोद तक एक तहजीब का पूरा नमूना पेश किया है। कैसे आप इनकार कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं। मेरे इस्लाम ने फरमाया खाना खाओ तो कैसे खाओ? बोलो, सच है? अरे बोलो। मैं बड़े सीधे जुबान में बोलता हूँ। मैं भी एक तारीख का वर्ग बुलाकर और 180 की रफ्तार में बोलकर गुजर जाऊं, मुझे भी आता है। मगर पता चला कि लोगों ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, है ना। समझो इस्लाम क्या है, मौका नहीं मिलता है आपको, इसलिए मौका है आपको बेदार करने का। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, फॉलोवर है कुरान के और इस्लाम के। हमारी हिस्ट्री पढ़ो, हमारी तारीख पढ़ो, तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या किया आप एक बार सुनो तो कसम खुदा की जमीन से पैर से जमीन घिसक जाएगी। इसीलिए कहा था आप रुए गंगा वो दिन है याद तुझको, है ना। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, और कहा बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा, है ना। और अल्लामा ने बड़े अदब से कहा था, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। हमारी एक तारीख रही है। यही मुस्लिम कौम जब दरिया दजला के सामने गए और एक आवाज लगाया तो तुझे दरिया दजला ने भी रास्ता बोलो दे दिया। बतला, इसी भारत की सरजमीन पे हम पे पानी बंद हुआ, हमने दिखला दिया मेरा पावर क्या है। बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दे एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखला दिया पावर क्या है। हिम्मत ना हो सकी आज तक कोई जवाब दे सके। हम ऐसे इस्लाम के फॉलोवर हैं, हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं। हमारे इस्लाम ने एक बार जमीन पे लात मारा, मुर्दे जिंदा कर दिया। है तुम्हारी औकात नहीं, हम उसके मानने वाले हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है, हमारा एक काफी वजूद है। हम किसी के मोहताज नहीं, हम किसी के गिरफ्त में नहीं, हम किसी के कब्जे में नहीं। कुरान कल भी आजाद था, आज भी आजाद है और क़यामत तक ये कुरान आजाद रहेगा। इसलिए इस्लामी तहजीब को लेके चले।
आज ये शादियां देखो, इस्लाम का जो पैरोकार है, आज हम लोग डंके की चोट पे बड़े अदब से बोला करते हैं। ये और बात है कि जो चीज जितने पर्दे में रहती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है ना। इस्लाम ने पर्दा सिखाया, हिजाब सिखाया, ये हमारी जिंदगी का एक अहम बात है और बड़ा खूबसूरत मेरे दोस्तों मौका मिला है। इसलिए आप देखें, आप ये निकाह को देखें, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम को आम करो, निकाह को आसान करो, है ना। क्या काम है बोलो? सलाम को आम करो। क्या कहा? सलाम को आम करो और निकाह को आसान। क्या बोला? कैसे आसान होगा? मोटरसाइकिल लोगे तब आसान होगा, 4 तोला सोना मांगोगे तब आसान होगा। बाराती आया, फरमाइश कर रहा है, ये बाप जन्म में नहीं खाएगा, फरमाइशी कर रहा है। ये क्या इजामत है कि नहीं? बोलो, इस्लाम में ऐसा है नहीं। बड़ा साफ सुथरा, लोगों ने मुश्किल कर दिया। नबी ने फरमाया, इस्लाम को, सलाम को आम करो। आज लोग इंतजार करते हैं, मोहम्मद साहब आएंगे सलाम करेंगे। अरे सलाम तो कर ले, है ना। सलाम को आम करो और निकाह को, पूरा मजमा बोलते हैं, निकाह को आसान करो। आज नौजवान ऐलान कर दे, मुझे जहेज नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत पर निकाह पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। माहौल में हमारी इस्लाम है, आज भी हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। हम बिके हुए दलाल नहीं है, हम आज भी किसी की बेटी को लाकर निकाह पढ़ाते हैं। आज भी मेरा दावा है, लाखों करोड़ों बेटियां हैं जिनकी निकाह मुफ्त और बगैर पैसे को हो रहा है। अरे ऐसे ऐसे बाप है जिनको मैं सैल्यूट मारूंगा, जिनको सलाम करने का जी चाहता है। वो कहते हैं भाई तो जोड़े दे दे और बेटा का निकाह में पढ़ा लो। सुभान। ऐसे भी लाल इस जमीन पर है, ऐसे भी बाप है जो अपने आवाज पे सपना नहीं लगने देते और कहते हैं बेटी वाले तैयार हो जा, मैं आऊंगा और निकाह पढ़ाऊंगा। बोलो कितना खुशी होता होगा उस खानदान पे। जिंदगी भर आपका वो गुलाम बना रहेगा अगर ऐसे बेटे वाले मिल जाए। और यहाँ तो बड़ा खूबसूरत ये चोर की तरह आता है, बोलता है मेरा तो कोई डिमांड नहीं था, लेकिन जमाना देख ही रहे हो, गड़िया तो चाहिए कीजिए। अरे बड़ा अच्छा से बोल रहा है ना। ये आलम है, ये खूबसूरत है। और अगर थोड़ा सा डिग्री आपका हो गया, बोला जानते हैं जमाना जो है अब तो वो मोटरसाइकिल का दौर नहीं, अब तो बुलेट का दौर आ गया। बोलो भाई कि नहीं? बड़े अपने से ऑपरेशन हो रहा है, ये दौर है, ये जमाना है। अंदाजा लगा उस बाप को क्या गुजरेगा जिसकी औकात नहीं होगी। इसलिए नबी ने फरमाया, हदीस पे अमल करो। और मेरे दोस्तों, बेटियों के साथ तो बड़ी मजबूरियां होती है, मगर बेटों के साथ तो कोई मजबूरी नहीं है। एक बाप अपनी बेटी को अच्छे लड़का, अच्छी तहजीब, अच्छे घराना में देना चाहता है। अगर इल्म नहीं है तो उसके साथ मजबूरियां हैं। इसलिए लेकिन एक बेटा कभी मजबूर नहीं हो सकता है। एक बेटा चाहे तो बाप को मजबूर कर सकता है, माँ को मजबूर कर सकता है, घराना को मजबूर कर सकता है। ए बाप ने मुझे पैदा करके जवान किया, मैं कमा कर दूंगा, तू चल निकाह पढ़ा ले। बोलो है ना। ईमानदारी से बोलना, बाप मजबूर होगा कि नहीं? बोलो। और बाप खुश भी होगा कि हमें फख्र है, हमने ऐसे लाल पैदा किया। अंदर से खुश होगा कि शुक्र है माबूद तेरा कि ऐसा बेटा पैदा किया जो आज मुझे क़यामत और आखिरत की गुनाह से बचा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये सुनो, ये धरतियां हैं, ये रब का इनाम है, पैगाम मोहब्बत है। इसलिए इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी का एक पैगाम लेकर चले। ये शादियां रब का इनाम है। आप देखें नबी की सुन्नत कितनी प्यारी है। हमारे इस्लाम में बाजा जायज है? अरे बोलो ना, गाजा जायज है? नाचना, ढोल बजाना ये जायज है? नहीं। कितना आसान है भाई, बोलो। लेकिन आजकल ही रोडवा पर आफत मचा देता है। बोलो भाई कि नहीं? आफत मचा देता है। भाई साहब देखिए, हम लोग डर से साइड हो जाते हैं। ये हालत है, ये हालत है मेरे दोस्तों। मरीज़े जहेज